Hmm. क्या लगता है विंस्टन? Where we will head from now, you think? Well, sir, I don't know right now. Just one thing I can say. It is a good start to have first of all. We need something to go after those shady works. If we let this to continue, then there will be no end of it, sir. Good that Mukhya Sevakji thinking about it. Hmm. Have you seen the file, Winston? The names mentioned in it? Hmm. Yes, sir. Last night I went through with that file and found almost every possible names in it. Obviously, we are working for that department where we easily get to know about every big gun of this world and their shady works too. So, no surprises with the names mentioned in it, sir. This was bound to happen. But, sir, yes, Winston, opened your heart fully. I am listening. Sir, almost each and every name is there in the file barring few, and those few are mostly from Mukhya Sevakji's side. So there is a little doubt about this one, sir. Well, I'm not doubting about Mukhya Sevakji, but their men, how can we so sure about them that they are not doing any shady kind of works? I have concern about it, sir. Hmm. Well, police mind, Winston, police mind of yours. Even I was thinking on that part too. Mukhya Sevakji's people are on the other side. I was even thinking about Mukhya Sevakji, as he is too politician, and we all know how his party came to the power. That too with the help of likes Gopal Das, who is the father of all shady works nowadays, whose name also mentioned in that list, Winston. So how to trust each of them is a big question. Hmm. Yes, sir. True observations. We can easily identify people like Gopal Das who can go for any lengths to get their things done. But we need to remain careful about those who are hiding behind the sober face and doing dirty works against our society. Big question about what to do about them, sir. Big question. Well, Winston, for now I guess we shall follow what we have in front of us. The way I know about Mukhya Sevak ji, his record is good in politics arena, has no dirty claims raised on him in the past. Regarding his people, I have few doubts about it. But Winston, think on the other angle. Even if Mukhya Sevakji wanted to do this type of shady works, he wouldn't. Because of the fact that we all know that you can't hide from it for that long. Mukhya Sevakji had almost 5 decades in politics, and this is his second term as chief of this state. He is having long reputation in politics with all betterment for people of the state. Yes, still we can't rule out any doubt about him. But for now, we don't have any other true-minded person at head position. In our departmental works, he never troubled us any time. He always praised and encouraged our good works that we did in right direction, Winston. So there I'm certain about his intentions. For keeping these things in mind, we have to consider this point at this stage. So I can say here, Winston, while working as per these file details, we shall keep our eyes and mind open to see if any other name comes up in this dirty work that has not been mentioned in that file. So we need to think in that way in all alertness. Plus, we need to collect enough information about them and their linkages to get all these players behind the bars. This way we can find and identify the real chain behind it. Quite right, sir. The way I think this is all about chain linkage. And if Mukhya Sevakji is involved in it, he is not that foolish to put enquiry about it, as ultimately someone would have chased after him in the end.
as he may have found out somewhere someday for sure. So, this thing for now rules out his involvement at this stage. But yes, you're right, sir. We need to see beyond these file details, as we may get some vital clues beyond that one. Very well, Winston. Good to go in all details. Have you went through the names and their scandals list? Many things to look at. Yes, sir. Many names are familiar in it. And when I saw their scandal list, many things we need to search for. It may take several months to get those things done, but I am sure we will definitely succeed in it in coming time if we follow one streamlined path. Huge task ahead and lots of things to look at. I am sure we will get all the required support for all this. Yes, Winston. In file, it is clearly mentioned that we will get all kind of required support from Mukhya Sevak Ji that we needed. It needs proper channel to get all these things done. We know how to crack it in big way, and that is how we can raise our requirements that all support will get in this. We just need to remain cautious about our work and need to show same patience that we have showed in our solved cases in the past. That is the key to go for it. Otherwise all mess would follow us. That file have all required details to go for it. Yes, sir. I need to sit on it for longer time to collect all minute details for this case. And I suppose sometimes later, even we both have to sit together to form our strategy over it. It seems more years would go in this case, I guess. Yes, true. By the way, Winston, any update over that chemical case these days? Update from Shalini or any other lead from somewhere? No, sir, not these days. I do check time to time with Shalini, but she says the work is in progress always. No further lead at it. Even I had a chat with Zahid long time back, but he haven't disclosed anything in it. Maybe he's working on some secret assignment, I suppose, in this regard. Maybe he will reveal something sometimes later. I know Zahir. When the matter is critical, he then switches to secrecy and don't reveal anything to anybody. That is why these generalized statements. The work is in progress. I am sure even Shalini too following the same thing to hide inside information right now, which they will reveal in coming time and at exact point. Zahir is a genius, I know. Yes, sir. Even I have realized this from long. They do convey straightforward things on their own, but for this thing they are maintaining higher secrecy. Of course, for good intent only. Hope this would work in coming time in that case. Okay, sir. Have to leave for the field now. We'll update you later. Jai Hind, sir. Jai Hind, Winston.
अरे भैया जी, कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। क्यों, क्या हुआ अरविंद? कोई मर गया क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं भैया जी, एग्ज़ाम शेड्यूल डिक्लेयर होने वाला है और सब तैयारी चल रही है उसके बारे में। मैंने तो ये भी सुना है कि सब सब्जेक्ट्स के पेपर भी तय हो चुके हैं भैया जी। और सुना है कि इस बार पेपर्स बहुत टफ होने वाले हैं मिड टर्म पे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अरविंद? ये तो सालों से चलते आ रहा है। इतना जो कुछ होता रहता है साल भर में हमारे यहाँ पढ़ाई के अलावा, तो बाद में सब कुछ ट्रैक पर लाने के लिए एग्ज़ाम पेपर्स टफ करने ही पड़ते हैं सबको। तब जाके हर कोई पढ़ाई को सीरियसली ले पाएगा, वरना ये कॉलेज सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में उलझ कर रह जाएगा और पढ़ाई के नाम पे सब मजाक चल रहा होगा यहाँ। ये तो हमेशा का रूटीन है अरविंद। नहीं भैया जी, इस बार तो सुना है कि पेपर्स बहुत टफ होने वाले हैं। सबकी नैया डूबेगी इस बार, ऐसा लग रहा है हमें। बात शायद ज़्यादा संजीदा है। तो उसमें क्या है अरविंद? अरे एग्ज़ाम्स अगर मुझे टफ करवाने हैं एज अ फैकल्टी, तो मैं मिड टर्म पे ही करवाऊंगा ना, ताकि हर कोई फिर सीरियसली स्टडी करे आगे जाके। और बाद में ईयर एंड वाला एग्ज़ाम आसान रखूंगा, ताकि हैप्पी एंडिंग हो साल का। इस हिसाब से सभी लोग पढ़ाई में जी जान लगाकर पढ़ाई भी करेंगे और बचे हुए वक्त में एक्स्ट्रा करिकुलर भी संभालेंगे। यही तो बैलेंस है पूरे साल का। लेकिन भैया जी, ये क्या बात हुई? एग्ज़ाम स्टॉप करके ही सबको पढ़ाई की सीरियसनेस समझाने का क्या मतलब है? सही ढंग से बता के भी तो ये हो सकता है। अरे भाई अरविंद, ये सब बातें इतनी सीधी होती तो हर कोई पढ़ाई कर लेता आसानी से और अवार्ड्स भी मार लेता भाई। लेकिन ये बातें हमेशा टेढ़ी ही होती हैं और इसलिए इसे रास्ते पर लाने का कुछ टेढ़ा ही सोचना पड़ता है, जो हमारे टीचर्स कर रहे हैं। वरना हर कोई कैंपस की पढ़ाई को हल्के में ले लेगा और सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ही उलझा रहेगा। आखिर हम कैंपस में क्यों आते हैं? सिर्फ पढ़ाई को ध्यान में रखकर ही ना अरविंद। तो ये सब तो होता ही रहेगा, समझे? आप बात समझे नहीं भैया जी। ये तो हम आम स्टूडेंट्स की बातें कर रहे हैं, जो ये सब संभाल सकते हैं। मेरे जैसों का क्या भैया जी? हम तो हमेशा इन सब में मारे जाते हैं। पढ़ाई तो हमें कभी जमी ही नहीं, तो इसलिए इस सब में हम जैसों की हालत हो जाती है भैया जी। करे तो क्या करे, कितना भी ट्राई करे, बात कुछ आगे बढ़ती ही नहीं हमारी। अरे अरविंद, चिल यार, क्या टेंशन ले रहा है तू भी? मेरे साथ रहकर तू एग्ज़ाम्स की टेंशन ले रहा है। तुम्हारा भैया जी जो है अभी तुम्हारे साथ, तो फिक्र की क्या है बात। हम हमारा हमेशा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जिससे हम दोनों का काम आसानी से होगा, समझे? इस बार भी हमें एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पहले से ही पता होंगे और उसे हम अच्छी तरह से प्रिपेयर करके हमारा काम बन जाएगा आगे जाकर। हर साल का तो ये फॉर्मूला है हमारा, ट्राइड एंड टेस्टेड और सक्सेसफुल भी। तो डरना किस बात का है अरविंद? मैं तो हमेशा तुमको संभाल लेता हूँ एग्ज़ाम्स के वक्त, तो इस बार क्यों इतने डरे हुए हो? आखिर बात क्या है अरविंद? बात कुछ नहीं है भैया जी, बस एग्ज़ाम्स की न्यूज़ सुनकर डर गया था मैं, और आपके मुंह से सुनना चाहता था कि इस बार भी मुझे एग्ज़ाम्स में राहत मिलेगी आपकी तरफ से, वरना ये पढ़ाई वगैरह हमारा काम कहाँ। तो ये बात है। तुम भी ना अरविंद, हर बात पर अपना उल्टा दिमाग चला लेते हो। कभी तो बात को सही ढंग से समझा करो, तो हर बात समझने में आसानी होगी तुम्हें, वरना उलझे ही रह जाओगे हमेशा सीधी सीधी बातों में। अरे भाई, बात को पहले वो सीधी तरीके से सुलझ रही है क्या, ये देखो पहले। और अगर वैसा ना हो तो ही अपना उल्टा दिमाग चलाओ, तो जाकर आगे बात बनेगी यार, वरना मारे जाओगे एक दिन, समझे? अरे नहीं भैया जी, ख्याल रखेंगे हम।
वैसे आप तो मुझे बचा ही लोगे हर बार की तरह, इसलिए तो हम आपको इतना मानते हैं भैया जी, क्योंकि हर बात हमें हमारी सोच के बाहर की लगने लगती है आजकल। अरे अरविंद, अपनी सोच को थोड़ा बदलो अब, और अपने रवैये को भी। तुम हमेशा शॉर्टकट लेने की सोचते हो, जो हर बार कामयाब नहीं हो पाता, समझे। हर बात पर कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है हमें, और वो करनी भी चाहिए। जहाँ हमारी सोच धोखा खा जाए, वहाँ हमें फिर शॉर्टकट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ऐसी बातें ज़िंदगी में कम हो तो ही अच्छा रहेगा अरविंद, नहीं तो जी नहीं पाओगे तुम, समझे। ये बातें तुम जितनी जल्दी समझ सको तो समझ जाओ, वरना एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि तुम्हें तुम्हारा ये भैया जी भी बचा नहीं पाएगा अरविंद, याद रखियो। रही बात एग्ज़ाम्स की, तो मैं तुम्हें हमेशा बचाते रहूँगा, क्योंकि काम की खबरें जो लाते हो तुम मेरे लिए हमेशा, जिससे कैंपस में क्या क्या हो रहा है इस बात की पक्की खबर जो रहती है मुझे, इसलिए निश्चिंत रहो तुम। हाँ हाँ भैया जी, इसलिए तो हम आपको इतना मानते हैं भैया जी, इसीलिए तो हर कच्ची पक्की बात हम आपके कानों में डालते रहते हैं। वैसे भैया जी, इन सब बातों में एक असल बात तो रह ही गई मेरी तरफ से। एग्ज़ाम पेपर्स का काम अब पूरा हो चुका है लगभग, और ट्रायल प्रिंट्स भी आ चुके हैं। शायद आपके पिताजी ने, मतलब हमारे प्रिंसिपल सर ने, वो प्रिंट्स अपने मदन के पास रखने दिए हैं टीचर रूम के लॉकर में। ऑलमोस्ट सभी पेपर्स का काम हो चुका है, मैथ्स पेपर को छोड़कर। वो भी शायद इन 2 दिनों में हो जाएगा आसानी से, ऐसा लग रहा है मुझे। क्या क्या बात कर रहे हो तुम अरविंद, और ये बातें तुम अब बता रहे हो इतने वक्त के बाद। अरे अगर ट्रायल प्रिंट्स निकल चुके हैं तो मुझे मेरे काम पर अभी लगना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम्स का काम हमारा आसान हो। तुम भी ना अरविंद, बाकी बातें छोड़कर ये काम की बातें बाद में बता देते हो, और दुनिया भर की बातें पहले बता देते हो। इतना वक्त बर्बाद ना करो अरविंद, वरना एक दिन वक्त तुम्हें बर्बाद कर देगा, समझे। अब मुझे हर बात ठीक से बताओ इसकी, हर बात, समझे। जी जी भैया जी। बात यह है कि सुबह मैंने मदन को आपके पिताजी से बात करते वक्त सुना, जिसमें आपके पिताजी मदन को अच्छी तरह से बता रहे थे कि मैथ्स के पेपर को छोड़कर हर पेपर का काम पूरा हो चुका है सभी प्रोफेसर्स का, और वो सभी ट्रायल पेपर्स उनके केबिन के टेबल पर पड़े हैं, और वो मदन को कह रहे थे कि वो उन्हें उठाकर उनके केबिन से लेकर टीचर्स रूम के लॉकर में रखवा दे, वो भी अय्यर सर को बता के। मैथ्स का पेपर 2 दिनों में आ जाएगा नफीसा मैम की तरफ से, सो तब तक वो सारे पेपर्स लॉकर में रखे जाए, ऐसा वो मदन को कह रहे थे। मदन कुछ सुप्रियो सर के काम में बिजी था, इसलिए सर ने उसे ये काम 3 बजे के बाद करने को बोला है। तो इसका मतलब वो पेपर्स अभी भी प्रिंसिपल सर के केबिन के टेबल पर पड़े हैं, और मदन फ़िलहाल बाकी कामों में बिजी होगा शायद। तो ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो अरविंद, इतनी देर के बाद। नहीं भैया जी, मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा था ये बात शेयर करने के लिए, लेकिन आप मिल नहीं रहे थे मुझे। और एक बात भी है भैया जी। बात? क्या बात? कौन सी बात? भैया जी, प्रिंसिपल सर ने मदन को ये सब बातें बताकर ये भी कहा कि अब वो 2 घंटे के लिए प्रताप सर के साथ एक मीटिंग के लिए बाहर जाएंगे, और 4 बजे लौटेंगे कैंपस में वापस। शायद देर भी हो सकती है उन्हें। तो ये सबसे काम की बात है हमारे लिए अरविंद। अभी 1:30 बजा है, डैड अभी आधे घंटे में निकलेंगे 2 घंटों के लिए बाहर की मीटिंग अटेंड करने के लिए। ये बात तो सबको पता है कि कोई भी मीटिंग डैड की 2 घंटे में पूरी नहीं होती कभी। इट टेक्स टाइम ऑलवेज। सो वो 4 बजे के बाद ही आएंगे कैंपस में, कंफर्म्ड। तो ये सही मौका है हमारे लिए मदन के साथ मिलकर
एग्ज़ाम क्वेश्चंस को पहले से ही देख लेने का, ताकि जो ये टफ़ एग्ज़ाम्स की बातें चल रही हैं वो सब हमारे लिए आसान हो जाए। हमें सिर्फ एक ही काम करना है अरविंद, कम वक्त में हमें सभी सब्जेक्ट्स के बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन देखने होंगे, क्योंकि वही हमें एग्ज़ाम्स में बचाएंगे। कम मार्क्स के क्वेश्चंस हाथ ना भी लगे तो भी चल जाएगा हमारे लिए, लेकिन ये बड़े वाले क्वेश्चंस हाथ लगना बहुत ज़रूरी होगा हमारे लिए, समझे? मदन क्या कर रहा है फ़िलहाल?